Hello, everybody. A very good afternoon and welcome to Skill Ninja. I hope all of you are doing well. And today I welcome all of you to yet another session of Confab with Mehak. Because New Year's is around and the Christmas is also very near, I hope all of you are excited and feeling the festive vibes. Well, with all of that, today's confab is going to be very interesting because we want all of you to progress not only in all other fields, but also in your personal relationships and everything that is associated with career growth and success. So, wouldn't you all agree that relationships are extremely important when it comes to growth? So, that is how we have called upon this very special guest today, Ms. Shalini Gupta, who is going to be telling you all about relationships because by profession she is an advocate and she is a relationship advisor, a counselor, much needed in today's era, I guess, because I think all of us in this, fast pace of life where we are progressing in everything, there is one thing that we lag behind in, which is relationships. And everybody here will agree with me that we face a lot of problems in relationship these days. Be it with your spouse, with your children, with your parents, with your in-laws, and anybody. So today, to solve all your problems, here is Miss Shalini Gupta. Hello, Shalini ji. A very warm welcome to Skill Ninja and to Confab with Mehak. How are you doing? Yes. Hello, Mehak. Hello, everyone. So I welcome you, Shalini ji. And to my audience, for my audience, once again, I want to tell you that Shalini ji is an advocate by profession and she is a relationship coach. She is an advisor, a counselor. So let us know from Shalini ji that Shalini ji, please tell us something about yourself. How did you start this journey, this profession? What came to your mind that you started on this journey? I'm very happy now because with you and your audience. Yes. Hello, everyone. My name is Shalini Gupta. I'm 52 years old. Not old, very young. Yes. So I'm an advocate and a marriage and relationship counselor. And yes, fitness coach also. I have three kids. Okay, Two wonderful. engineer daughters and one doctor son. My husband is also an advocate. When I was, I think, 40 plus. So, Mhm. yes. No, after marriage, I completed my studies, LLB. Okay. And before, yes, I am in literature field, Hindi and English literature. So, Oh. I'm a poet and writer also. Mm-hmm. So, after that, my marriage, my husband told me, please uh, complete your LLB, your future. And so I thought, no, it's not very easy for me because I was in literature field. But yes, so in my life, I can attend all the queries and all the difficulties and problems. Yes, I'm very interested to invite all the things. So, yes, so I completed my LLB, but because my kids, they were very young, so my family responsibilities were most important that time. Yes. So, yes, so now after the my kids, when they grew up, they grown up. So, yes. सो शालिनी जी आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप काउंसलिंग में क्या होता है और आजकल जो हम इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज देख रहे हैं रिलेशनशिप्स में इन सब का मेन कॉज क्या है? देखिए महक, बिकॉज पहले हम जॉइंट फैमिली हुआ करते थे, तो एवरी पर्सन इन देयर फैमिली वो कनेक्टेड होते थे किसी ना किसी से, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ या अंकल आंटी के साथ या अपने कजन्स के साथ. बट नाउ वी ऑल आर इन न्यूक्लियर फैमिली. So हम्म. the main problem is lack of communication in every relationship. चाहे वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, चाहे वो सिबलिंग्स की रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली या रिलेटिव्स की रिलेशनशिप है. तो द मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हम्म. अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर व्यूज.
हम कम्युनिकेट ही नहीं करते किसी के साथ। हम एक मन में कुछ हमने बना लिया, लाइक मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, तो बजाय इसके कि मैं आपके साथ उसको शेयर करूं, आपके व्यूज सुनूं और अपने व्यूज बताऊं, मैं अपने मन में उसके प्रति एक धारणा बना लेती हूँ और लगातार सोचते सोचते, जैसा होता है ना कि वो कुछ का कुछ बन जाता है। प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, इश्यूज बहुत छोटे होते हैं। एक्चुअली मैं कहूंगी कि इश्यूज होते ही नहीं है, हम इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हम उनको इश्यू बना लेते हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन एवरी रिलेशनशिप। तो जैसा कि मैं फैमिली कोर्ट में भी देखती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच कोई इश्यूज होते ही नहीं है। वो कब कैसे बन जाते हैं, कहीं हमारा ईगो क्लैश हो रहा होता है, कहीं हमारा एटीट्यूड क्लैश हो रहा होता है, कहीं हम अपने आप को एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, बिकॉज एवरीवन इज सुपीरियर नाउ द टाइम। Yes, you are so right. आजकल relationships में nobody wants to, step down from the pedestal. सब किसी को पूरा rights एग्जैक्टली। but responsibilities own up नहीं करना चाहते. नहीं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी, आपके राइट्स, यस, राइट्स कंपलसरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपलसरी है, बस एक दूसरे को थोड़ा सा समझना जरूरी है, जो बहुत दूर होता जा रहा है। हम एक दूसरे को समझना और सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप हर रिलेशनशिप में देखिए, लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप दूसरे को सुनिए जरूर। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम किसी को सुनना नहीं चाहते, केवल अपना बताना चाहते हैं। Yes. सो दैट इज द मेन एंड बिग इशू एंड बिग प्रॉब्लम ऑल्सो। सो मैं चाहूंगी कि आप मुझसे कुछ इस बारे में पूछना चाहेंगे, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं। ओके, तो शालिनी जी, आपने जैसा बताया कि अभी आपने कहा कि आप मैरिज काउंसलर हैं, बट बीइंग अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट एंड काउंसलर, आपने ऐसा भी कहा कि हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमें पेरेंट्स से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये किस तरीके से केसेस सामने आते हैं? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से होती हैं, या फिर पेरेंट्स को अपने बच्चों से होती हैं? वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं? Yes, it is very good and interesting question. Not interesting, current issue. बिकॉज जो यंगस्टर्स होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स में, उन लोगों को लगता है कि जनरेशन गैप आ गया है, पेरेंट्स हमारे हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमें ये करना है और हमें रोका जा रहा है, तो हम वहां पर चीजों को छुपाने लग जाते हैं। तो वहां भी अगर महक हम देखेंगे ना, तो सबसे बड़ा इशू वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही है। शुरू से हमने आदत नहीं डाली अपने बच्चे को और खुद को भी कि हम हर बात बच्चे के साथ शेयर करें, तो हमें वो शेयर करने की आदत नहीं है। जब हम छोटे थे तब तो होता था कि हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, उनकी डेली नीड्स पूरी कर दी, पर जब वो बड़े होते हैं तो रिक्वायरमेंट्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाती हैं बच्चों की। हमें वहां उस लेवल पर जाकर सोचना होगा, पर क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, हमारी खुद की इतने काम होते हैं कि हम वक्त ही नहीं दे पाते। अगर हम वर्किंग हैं तो हमें क्या होता है कि सुबह बच्चे को स्कूल जाना है और उसके बाद हमें ऑफिस जाना है, तो हमारे पास सुबह टाइम नहीं है। आफ्टर दैट बच्चा स्कूल से आया, हमने ट्यूशंस लगा दिए, या हमने बच्चे को कहीं कुछ सीखने के लिए क्लासेस में भेज दिया, कुछ भी ज्वाइन करा दिया, लाइक क्रिकेट, अगर ही इज अ बॉय तो हमने उसको क्रिकेट कोच में भेज दिया, हमने उसको किसी स्पोर्ट्स में भेज दिया, स्विमिंग, मतलब हमने उसके पूरे दिन का शेड्यूल बना दिया। पर क्या हमने ये शेड्यूल बनाया कि मैं किस समय पेरेंट्स और बच्चे बैठकर एक हेल्दी टाइम स्पेंड करेंगे? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसके साथ उसकी दिनचर्या शेयर करें कि उसने सुबह से शाम तक क्या किया, किन फ्रेंड्स के साथ बातचीत की, किस विषय पर बातचीत की, कभी वो सैड है, कभी वो हैप्पी है, कभी वो कुछ अचीव करके आया है, वो बताना चाहता है अपनी मदर को या अपने फादर को, पर उनके पास टाइम नहीं है। हम्म। तो दैट इज द मेन इशू, और वो धीरे धीरे हमारी रूटीन में शामिल हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ गलत हुआ, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो उसकी सारी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, उसको बहुत बेहतरीन स्कूल में हमने भेजा है, उसको बहुत कपड़े अच्छे, बैग अच्छे, गैजेट्स जो भी उसको नीड है, बढ़िया से बढ़िया बुक्स, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में छोड़ने जाते हैं, स्कूल बस, बहुत अच्छा खाना, उसको जो पॉकेट मनी, मतलब हम उसकी नीड्स पूरी कर रहे हैं।
बट क्या आप उसकी मेंटल नीड्स पूरी कर रहे हैं, उसकी इमोशनल नीड्स पूरी कर रहे हैं? जब उसको जरूरत है कुछ बताने की, कुछ शेयर करने की, क्या मैं अवेलेबल हूँ? Okay. So you दैट इज द basically मेन बिग इशू। lack of communication is the key कि जहाँ लैक ऑफ पर द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। हम्म आपको उसके लेवल पे जाके आप अपने आप को 20 साल पीछे लेकर जाइए। जब आप 16 साल की थी या आप 16 साल के थे, तब आपके क्या इश्यूज होते थे? हम्म हमने भी अपने टाइम में ये चीज महसूस की है कि जब हम अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते थे, शायद हमारे टाइम में हम इतना कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, मदर काम में लगी हुई हैं। मैं चाह रही हूँ कि मेरी मदर मेरे पास बैठे हैं, मुझे थोड़ा मेरे सर में हाथ फिराएं, मुझे पास में बिठाएं, मुझे हक करें, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। तो वहां जो एक कनेक्शन बनता है ना, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारा बीच में हम्म उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। Okay. So, very nice, very interesting. This was that communication की वजह से ही पेरेंट्स और बच्चों में प्रॉब्लम हो रहा है. So, शालिनी जी, और किस तरीके के रिलेशनशिप्स में आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि आजकल आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कि क्या वो इन लॉज के साथ में प्रॉब्लम है, क्या फिर विच इज़ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं? महक, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आजकल मेरे पास प्री वेडिंग काउंसलिंग भी होती है। जो ओह! हमारे यंग, यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और अभी पिछले 2-3 साल से ये स्टार्ट हुआ है कि जो हमारी यंग गर्ल्स हैं या यंग बॉयज हैं, जो अब शादी के लिए तैयार हैं, उनको लगता है कि हम एक बिल्कुल नए बंदे के साथ या नई फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे या नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाएंगे या नहीं। आप यकीन मानिए, मेरे पास आजकल 24 से 30 इयर्स तक की जो यंग गर्ल्स जो की शादी के लिए तैयार हैं, उनकी बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं। वो मेरे से पूछती हैं, मैम, एक बिल्कुल नई फैमिली में जाकर मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? मैं तो इतना नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो बचपन से जो मुझे चाहिए था मेरे पेरेंट्स ने दिया। जितना स्पेस मुझे चाहिए था, क्या वो स्पेस मुझे मिलेगा? तो उनको एक डर होता है कहीं ना कहीं कि क्या हमें वो स्पेस मिलेगा, क्या हमें वो आइडेंटिटी मिलेगी। कुछ फिल्मों को देखकर, कुछ सुनकर एक कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ होता है, शायद हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हुँ, शायद हम उनको खुश नहीं कर पाएंगे उस दूसरी फैमिली को। और उसके चक्कर में ऐसा तो नहीं कि मेरी एक जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो कहीं दब जाएगी, या मेरे जो शौक है, मेरी हॉबीज हैं, मैं वो पूरी कर पाऊंगी? क्या मैं लाइफ ऐसे ही जी पाऊंगी, या मैं ऐसे ही ठीक हूं? तो यस। शादी से लगने लगा है उन लोगों को। तो दिस इज लिए बहुत आश्चर्यजनक था जब शुरुआत में मुझसे सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड की डॉटर ने कहा कि आंटी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स ओके, आना बेटा। फिर उसने मुझे कहा कि आंटी मैं ऑफिस में आपके साथ अकेले बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि आप मेरी मदर के साथ ये शेयर नहीं करेंगी। ओके। तो ठीक है, इट्स ओके बेटा, यस। फिर उसने मुझे जब ये सारी बातें बताई, तो बिकॉज फर्स्ट टाइम तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे लगा कि यस, ये तो बहुत करंट इशू है और एकदम सच भी है। क्योंकि यस। आज हम जिस तरीके से अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, आप ये देखिए कि ज्यादातर तो बच्चे बहुत जल्दी हम लोग बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, इंडिया में भी या फिर आउट ऑफ कंट्री। आफ्टर 8th आई थिंक कि 10th 12th किया, और 10th 12th के बाद तो बच्चे चले ही जाते हैं फॉर प्रोफेशनल कोचिंग और एंड अदर इशू। एंड आफ्टर दैट जैसे ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, जॉब में चले जाते हैं, और जॉब में होने के बाद हम फिर शादी के लिए, अगर उन्होंने पसंद कर लिया है तो ठीक है, या फिर हम अरेंज मैरिज करते हैं। तो वो जो एक एडजस्टमेंट वाला पीरियड है जिस एज में, जो हमारे टाइम में हुआ करता था, वो उन बच्चों ने नहीं देखा है। तो उनको लगता है कि एक बिल्कुल नई फैमिली में जाकर वहां के लोगों के साथ मेरा बॉन्ड कैसे बनेगा? क्या यस। वो मुझे क्या क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, या मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊंगी? उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे से कितनी हाई होंगी? बिकॉज अभी तो नाउ एक इशू और है, क्योंकि जैसा कि हमारा एक इंडियन कल्चर भी है, हालांकि चेंज हो रहा है, कि थोड़ा सा फीमेल से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो घर संभालेगी ज्यादा, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। नॉन वर्किंग है तो इट्स ओके, उसको कंपलसरी माना जाता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
लेकिन अगर वो वर्किंग है तभी भी एक एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। हम Yes, इक्वालिटी के बारे में कितनी भी बात करते हैं, लेकिन इंडियन कहीं ना माइंड कहीं, रहता है। हाँ, कहीं ना कहीं उतना इक्वल शायद हम नहीं हो पा रहे हैं, हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन Yes, you are so टाइम। right, Palini ji. You have pointed out some many, intricate things जो कि बहुत ही deep rooted हैं हमारी society में as Indians, as an Indian society हम बहुत सारी चीज़ें करते चले आ रहे हैं, जैसे कि marriages of course, जैसे कि आपने बताया कि लड़कियों का इस चीज़ को लेकर के fear, I think which is very obvious, and we the new generation can understand, because yes, it is a lot of expectation and it is a lot of adjustment, and suddenly taking up responsibilities जो आपने कभी अपने घर पर करी ही नहीं. So that was so wonderful knowing all about it. You are a very inspirational woman, Shalini ji, and wrapping up this wonderful session, I think all the audience really enjoyed. I hope आप सबने कुछ ना कुछ आज यहाँ पर सीखा कि कैसे रिलेशनशिप्स हमारे चलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। शालिनी जी, इन द एंड हाउ वुड यू सजेस्ट आवर लेडीज, आप इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि एज वुमेन, जैसे कि आप खुद बोल रहे हैं कि आपके बच्चे जब बड़े हो गए तब आपने अपना करियर स्टार्ट किया, करियर तो स्टार्ट किया। आप इन सब लेडीज को आज क्या कहना चाहेंगी इधर, कि इनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपने लिए इन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज स्किल निंजा के मंच से आपके साथ जुड़ी हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और समाज के में काम आ सकूं, ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है। मैं समाज, एज ए सोशल वर्कर 22 ईयर्स से कई सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता था अपने बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में ख्वाहिश थी कि कुछ चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में शायद नहीं पाई या नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हम जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही हो, वही मिले, है ना। लेकिन हम हमेशा से एज ए मदर ये चाहते हैं कि कुछ चीजें या कुछ सपने जो मेरे अधूरे रह गए हैं वो अपने बच्चों में देखें। हम्म। तो जैसे कि मैं एक स्टेट लेवल की डांसर रही हूँ, बिकॉज जुम्बा, एरोबिक्स, फोक डांस मेरा स्पेशल रहा। तो कभी मैं क्लासिकल नहीं सीख पाई, तो एक ख्वाहिश रहती थी मन में। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस थे कि पास नहीं था, दूर बहुत था, तब इतने साधन हमारे पास नहीं हुआ करते थे कि हम इतना इजीली कम्युनिकेट कर सके, इजीली जा सकें, इजीली आ सकें। और शायद पेरेंट्स से भी उतना स्ट्रांगली कभी नहीं कहा कि नहीं मुझे तो सीखना ही है। हम्म। हालांकि मैंने बहुत प्राइजेस, लेट मिसेस सरोज खान ग्रेट कोरियोग्राफर से मुझे नाचे मयूरी का अवार्ड मिला। तो बहुत सारे अवार्ड मुझे डांसिंग फील्ड में मिल चुके हैं। और वुमेन ऑफ द ईयर मुझे दिल्ली में मिला इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर से। और मैं 2010 में मिसेस मेरठ रह चुकी हूँ, ओह वाह। बिकॉज यस। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले, मैं बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ी रही। लेकिन काउंसलिंग के फील्ड में मैं आपसे 12 साल पहले आई। ओके। लॉ मैंने 96 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैं फैमिली कोर्ट में भी जुड़ी रही। फिर बीच बीच में थोड़ा बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में शायद उतना ज्यादा वक्त नहीं दे पाई। लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा सा बच्चे 10th 12th में आए, मैंने अपने करियर की तरफ ध्यान देना शुरू किया। और कुछ केसेस जो फैमिली से ही स्टार्ट हुए और मैंने शुरू किए, तो मेरे हस्बैंड, बिकॉज ही इज ऑल्सो एन एडवोकेट, तो उनको लगा कि मुझसे ज्यादा अच्छे से तो तुम हैंडल कर पाती हो, तो आप इसी फील्ड में आओ। और मेरा इंटरेस्ट भी था, बिकॉज मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था हमेशा से सबसे बात करना, सब कुछ लिखते रहना किसी भी टॉपिक पर। कभी भी रात में भी मुझे, आप मेरे बेड साइड पे हमेशा एक नोटबुक और पेन रहता है। कभी रात में भी मुझे अगर कोई थॉट आता है तो मैं उसे लिख लेती हूँ, हम्म। क्योंकि फिर जब आप सोचते हैं तो वो गायब हो जाता है, तो उस समय कोई थॉट आए। तो बस ऐसे ही इस फील्ड में आती चली गई, बहुत सारे केसेस आते चले गए। और जब सक्सेसफुल आप होते चले जाते हैं तो फिर आप डीपली उसमें एंटर होते चले जाते हैं, और फिर इंटरेस्ट भी लेवल भी डेवलप होता है। फिर मैंने एक बॉडी लैंग्वेज का कोर्स भी किया था, तो मुझे बड़ी खुशी के साथ ये अच्छा लग रहा है बताना आपको कि अगर मैं 5 मिनट आपके साथ फिजिकल मिलूं तो काफी कुछ आपके बारे में बता सकती हूँ, जो सुन के आपको लगेगा नॉट ज्योतिषी। ज्योतिषी नहीं है वो, सिर्फ एक थोड़ा सा, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर मूड्स, योर थॉट्स, सम बात करने से
वो आपको जैसा होता है कि एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आपको पता चलना शुरू हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब मैं उस लेवल पे बात करती हूँ तो फिर आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं मेरे साथ, क्योंकि Okay. आपको लगता है कि अरे ये तो मैं कहना ही चाह रही थी, ये तो मैं बताना ही चाह रही थी। तो ये कोई ज्योतिषी विद्या नहीं है, ये सिर्फ एक एक समझ लीजिए उसको, हाँ यस, जैसे कि हर किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि आप किताब है, और Hmm. उस किताब को थोड़ा बहुत पढ़ना मुझे आ गया है, तो ये है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के भी मैं किसी काम आ सकूं कभी भी, निशुल्क मेरी सेवाएं आपके लिए हमेशा। Thank you so क्योंकि much. मुझे, यस, मुझे हमेशा एक स्माइल अगर मैं दे पाती हूँ किसी को, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। और जो आपने अभी मुझसे पूछा कि मैं किस लेवल पे या सभी को मेरी क्या जरूरत पड़ती है, मैं किस लेवल पे काम करती हूँ, तो सबसे बड़ी बात तो मैं आप सबके साथ ये कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को एक केवल मन में सोच सोच कर बड़ा मत बनाइए। जिसके साथ भी आपको कोई समस्या है, एक बार उसको साथ बैठकर बात जरूर करिए, अपनी बात को समझाइए और उसको सुनिए। सबसे पहले सुनिए, उसके बाद अपनी बात बताइए। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनेंगी ना, तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि जब मैं बोल रहा था या मैं बोल रही थी, तो इन्होंने बहुत सुना, कुछ तो मैं भी सुनूंगा। और जब वो एक बार आपको सुनेगा और आप अपने दिल को खोलकर बात बताएंगी, तो ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपकी बात सामने वाले के दिल तक जरूर पहुंचेगी। एक बार करके देखिए मेरे कहने से आज ही, कि अगर आपको किसी से कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है, छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बहुत प्यारे से शब्दों में एक बार शेयर करिए। दावा करती हूं कि आपकी बात 100% नहीं तो 50-60% तो सामने वाले के दिल तक पहुंच ही जाएगी। और शालिनी जी की एक बहुत ही प्रेशियस टिप है आज की हमारी ऑडियंस के लिए। प्लीज ट्राई एंड लेट शालिनी जी नो वेदर इट वर्कड और नॉट। थैंक यू सो मच शालिनी जी, इट वाज सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आई एम सो impressed that you have done so many things, so many achievements. So ladies, there is no limit, there is no bar, there is no restriction for anything. जो भी आप करना चाहती हैं, you can do it all. शालिनी And जी, in any age also, yes, you Shalini ji, can do absolutely. anything in any age. सो यस, कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, देखिए वो कह रही हैं कि एट एनी एज, बिकॉज उन्होंने खुद ने भी अपना करियर बहुत लेट शुरू किया अपने बच्चे Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के बाद। क्योंकि हमारी अक्सर यही एक्सक्यूज होती है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम अभी नहीं कर सकते, तो उसके बाद करिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में चलते रहिए, छोटे छोटे स्टेप्स बनाते रहिए, जिसके लिए स्किल निंजा आपको बहुत हेल्प करता है। आपको किसी भी टाइप का कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको किसी भी टाइप का स्किल लर्न करना है, आपको करते रहना चाहिए, बिकॉज वो बेबी स्टेप्स कब बड़े स्टेप्स बन जाएंगे और आप कब सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसकी कोई भी ऐसे टाइम लिमिट नहीं है। सो रैपिंग अप दिस वेरी वंडरफुल सेशन, आई थैंक यू शालिनी मैं जी। मैं स्किल निंजा के लिए 2 वर्ड्स कहना चाहूंगी। प्लीज, यस। यस। मैं स्किल निंजा से भी जुड़ी लास्ट फ्यू मंथ्स, और मेरे 2 ही सपने थे, एक कार ड्राइविंग, एक इंग्लिश स्पीकिंग। तो व्हेन आई वाज 43 years old, मैंने कार ड्राइविंग सीखी, और आज मैं कार रेस में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। ग्रेट। एंड एक था, बिकॉज माय एजुकेशन वाज कंप्लीटिंग इन हिंदी मीडियम, क्योंकि दैट टाइम आई बिलोंग टू हरियाणा। तो सो यस, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इस समय बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हूँ इंग्लिश बोलने में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी मात खाऊंगी इन द होल वर्ल्ड। मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ इंग्लिश में, मैं बहुत अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। और अभी भी मैं स्किल निंजा के साथ जुड़ी हुई हूँ आगे भी। तो यस, दिस प्लेटफॉर्म वाज वंडरफुल, जस्ट वंडरफुल, अमेजिंग फॉर एवरी वुमेन। थैंक यू तो सो मच। अगर किसी को भी जरूरत हो तो स्किल निंजा के साथ जुड़ के एक बार देखिएगा। ये नॉट प्रमोशन नहीं है मेरी तरफ से, ये एडवाइस है। Oh, that's wonderful advice, Shalinji. We are so glad. And I hope that, everybody has taken your advice seriously. So thank you so much for being this lovely audience. I hope all of you enjoyed and she connected with you very well. I can see all the smiling faces and the women enjoying. That's so wonderful.
All right, see you in the next confab with another interesting session. Thank you so much, Shalini ji, for being such a wonderful guest. Thank you. Hello. Bye, all of you.